I will, I will repeat the question. जी सर, वो क्वेश्चन मुझे पता चल गया। 28-year female, term known case of mitral stenosis. Obstetrician wants to discuss with you about how to plan for this patient. And so you will be evaluating the patient and how will you manage to proceed for the cesarean section. Yes. Yes, sir, our patient is 28-year-old lady with mitral stenosis. First of all, I'll evaluate her on the basis of history examination and investigations. In history, I like to know if she has any kind of decompensation, any kind of end organ damage, any kind of all the medications that she is on, and What decompensation you can see? What end organ damage you can see? basically her functional class, that how severe her disease is, and Okay, how one. is it affecting her daily activities, to assess Okay. her functional class basically. Okay, then. And then some history about her pregnancy के लिए जरूरी है नहीं अच्छा medications. These patients are usually on anticoagulants and some antihypertensives or beta blockers, etc. So we'll like to know what kind of medications she's having. And then for investigations from simple CBC to check her hemoglobin and platelet count. And then we need her ECG. We might need her urea electrolytes because these patients are also on diuretics. And then we might need an echo if we find some might need, or that should be your first investigation. How will you functional class assess के बेस पे करेंगे या इसको करना ही चाहिए जरूर in all patients? How would you assess the severity then? Okay, ठीक है सही है. Echo is a must. Okay, right? so echo you have done. And In echo, what would and you a like to see? cardiologist consultation also. What echo on echo? What would you like to see? On echo, I'd like to see the degree of severity of stenosis, which we see by the size of the stenosis and the mitral valve orifice and the gradient. किस तरह से कहते हैं? 3 minutes have gone. Sir, right. You have not even started the case. You have not done anything. Okay, what would be your choice of anesthesia? My choice of anesthesia would be GA for the case, and I would like to cite an epidural for her post-operative pain relief. Okay, so anything would you like to rule out before putting epidural, or you will just straight away give the anticoagulation? The anticoagulation. If she's on anticoagulation, we'll have to see so did you mention in the previous 3 minutes anything about anticoagulation? I did mention about the history of medications, but what sort of, like, you did not mention anything. Okay, you just don't have to, like, okay, we will take 1 more minute. Anything else you want to tell? Okay, then according to the if we are going for the case, when we start the case, first of all, she's a pregnant lady. We have aspiration risk, so I like to give her the Antasid, the sodium citrate, 30 ml of sodium citrate just before the case, and then the induction will be with thiopentone. Does it decrease the risk of aspiration? This 30 ml? No, sir, it doesn't. It doesn't decrease the risk of aspiration, but it does. Why you are giving it? To increase the pH level of gastric content to prevent the side effects of aspiration. Okay. Why you said that you want to cite an epidural, so why don't you proceed only in epidural? Why you want GA?
Why you want to do Because this test? intraoperatively, the epidural can cause more hemodynamic changes as compared to GA, because in GA we can proceed with very controlled hemodynamics. What level of block you need for cesarean section if you want to proceed in epidural? T4. T4 what? T4 autonomic, T4 sensory, T4 motor. T4 autonomic, I would say. Okay. Sensory T4 T6 is autonomic. Okay. Okay. Any special monitoring needed? Yes, sir. Along with the standard 1 and standard 2 monitoring, I would like to cite an intra-invasive arterial line, invasive BP monitoring. And if the severity of disease is more, we can also cite an CVP central line also. Okay. So severity, what will CVP do? CVP will guide us for the fluid. You cannot get this information from A line waveform. Yes, we can also get it. So why you want to give CVP? We can omit it. So you will okay. देखें अब आप मुझे ये Backline इसमें हो सकती है, pulmonary artery catheter. एक सेकंड। अच्छा, पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर होगा, सीवीपी को आपने ओमिट कर दिया है और उससे भी इन्वेसिव चीज पे चले गए पल्मोनरी। अब आप मुझे ये बताइए, अब आपको आइडिया हुआ है कि वाईवे में लोग क्यों फेल होते हैं? आपको आइडिया हो गया, समझ आ गई बात? अब तैयबा, take this question and I'm expecting a better answer from you. Same question to you, okay? And everyone listen. First of all, I would like to start with an exam evaluation, a complete evaluation, and from the very beginning, because this is a very complex case, a pregnant lady with a mitral stenosis, I would like to have a multidisciplinary approach in a very individualized management for this case. I would later on tell you about the multidisciplinary report, but first I would like to tell about the evaluation in the complete history examination and the drugs which the patient is taking. In the history, my concerns are the onset, severity, the medication, the hospital admission, and the complications, and also the labs which I would be requiring. The complete blood count, the coagulation profile, RFTs, LFTs regarding because the patient is pregnant, and the coagulation profile because the patient can be on the anticoagulants, and ECG and the echo. And on the echo, as the Dr. Zishan has already told, I would be concerning about the severity of the disease on the basis of the mitral valve area and the pressure gradient between that walls. And also I would like to see the left ventricular. Anything else you want to see specifically in echo? Yes, in a patient with valvular heart disease? Yes, the decompensation in the form of the pulmonary hypertension, if there is any pulmonary hypertension, and the left ventricular hypertrophy as well. In the case of the one thing else you also want, especially in mitral stenosis. In the, any clot in the atrium. Thank you very much. Yes, any clot in the atrium. This is my area of concern as well. Regarding the valve size, what will be the critical? The critical is the less than 1 centimeter square, mild is the 1 to 2 centimeter, and moderate is 1.5 to 10, and severe is the less than 1 centimeter, and the pressure gradient which is greater than 10 centimeter of just to clarify, critical is I think less than 0.8 or 0.6. Okay, less than 1 is severe. Less than 1 is severe. Okay, and try to tell centimeter square. Centimeter square. Yes. And pressure gradients. Okay, you also have to mention about the severity. And third thing will be that there can be coexisting especially in critical or severe or long standing, there can be regurgitation. And yes, any regurgitation in also another valvular heart disease can also be present. And also whatever is recalling, I'm just trying to mention now. You also can say that if there is combined lien, you will be managing the case according to what thing is more severe. The severity of the disease, the lien that is having more sign and symptoms, I would be preferring to treat that disease first. Yes. Now about the general physical examination, I must be considering is there any diastole murmurs or what? And now about the cardiorespiratory evaluation and the cardiac consultation preoperatively, and also I would like to consult the hematologist for the preoperative optimization of the patient.
physician, a respiratory therapist, and the cardiology consultation. Regarding the drugs which the patient is taking, it could be the antihypertensive or the anticoagulants. So all the anticoagulants and the antihypertensive, according to the cardiologist, because if there is a risk. Antihypertensive, why? No, Not- that was in the no, not that really. was in the mitral stenosis case. No. Sorry, the anticoagulants or the diuretics. It could be the diuretics. Diuretics and actually anti-failure and heart failure, because hypertension is not the usual presentation of mitral stenosis. Mitral stenosis will be presenting in the form of dyspnea, Failure. cough, respiratory, and if it is acute decompensation, it will be in the form of Pulmonary edema. And if it is delayed, in the form of Failure. Failure or pulmonary hypertension. Okay. Pulmonary hypertension. Yes. Now about the this is all about the preoperative optimization of the patient with all the multidisciplinary approach which I have done. Okay. Now about the intraoperative, I would like just to a second. check Just a second. Before that, would you like to discuss with the patient, and would you like to arrange ICU? Yes, sorry. Yes, I would like to discuss first the patient about my mode of analgesia to the patient, because I would be very concerning about the analgesia, because it can precipitate the sign and symptoms of stenosis as well, and it would be not good for the patient. So I would be very concerning about the analgesia, and I would be managing my patient pain on the epidural analgesia. I would be citing it pre-inductional, so it would be necessary for me to have a consent for epidural and after checking the coagulation profile. So I would be telling the patient about all the consents and also the complications. Just an extra answer, like extra point, because thing is that if you are doing it wholly solely in epidural, you will be needing surgical anesthesia and you will be needing too much dose of bupivacaine, which will be causing more sympatholysis, which will not be good in mitral stenosis. Okay. Versus if you are managing the anticoagulation and you are just giving it as an analgesic with very low dose of very low concentration and very low dose of local anesthetic along with opioid, that will be giving you a very good analgesia, and it will be very good option management in post-operative period. Okay. Yes. Now about my the ICU arrangement, yes, I will do that, and I will also consult an intensivist about this case pre-operatively before this case. I would be also concerning about the senior obstetrician and the senior neonatologist should be present over there for this case. Okay. Now about the intraoperative management. How will you intubate this patient? Okay, first of all, I will make sure about something which pre-induction. What would be my emergency drugs and I will make sure that there would be phenylephrine present in the theater. If anything happens, then I can give that. And also the one thing. I'm sorry, because sometimes I don't want to miss anything. Zishan couldn't defend central line. Okay, because I just entangled him that why you want central line. So he couldn't defend. So anything else than the fluid status? Can you tell? Yes, the need of the vasopressors. If my patient needs vasopressors, okay, Zishan, आपने उसको सिर्फ साबित करना है ना, तो आपने उसमें ये बताना था कि भाई मैंने उसको वेसोप्रेसर्स की भी जरूरत पड़ सकती है, तो इट इज बेटर टू हैव सेंट्रल लाइन. वॉल्यूम स्टेटस देखने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है. वॉल्यूम स्टेटस देखने के लिए जरूरी नहीं है कि आप उसको सेंट्रल लाइन डालें. अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई उसको वेसोप्रेसर्स की जरूरत पड़ेगी, तो देन डेफिनेटली नॉरेपिनेफ्रीन इट इज नॉट एडवाइजेबल टू गिव थ्रू पेरिफेरल लाइन अनलेस इमरजेंसी. ठीक है. Yes, sir. What else? Now about my RSI preparation, I would make sure that there is a breakable table, the IV lines, the functional IV lines, functional suctioning, and functional suctioning, and the patient in the morning sniffing position. Then I would do my before doing my RSI, I like to cite an epidural and the same procedure for the epidural Joby. And I will also like to cite an A line pre-induction. Then I would do my RSI with the cricoid pressure of the with the cricoid pressure 10 Newton before sleeping, before unconsciousness of the patient, and 30 Newton after unconsciousness of the patient. And then I will make sure that after my tube balloon is inflated, then sorry तैयबा, आपको मैं एक कर रहा हूँ. नाउ आप भी पटरी से उतर रही हैं. वो इस तरह पटरी से उतर रही हैं कि इतना टाइम आपके पास नहीं है.
ठीक है, ये याद रखें कि ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, अब आपने दरिया को कूजे में बंद करना है। आप बहुत डिटेल बता रही हैं, Okay, इतनी I डिटेल will का do the टाइम नहीं RSI. होगा। पता क्या होगा इसमें, होगा ये कि वो अगर आप वो आपको खींच के लेकर आएगा। ट्राई टू मिनिमाइज योर वर्ड्स। आपको सब कुछ आता है, आप सब सही बता रही हैं, लेकिन यू आर गोइंग टू मच डिटेल्स, तो इतना तो टाइम ही होगा। Okay, I will do the RSI first and then RSI के बाद अब क्या? नहीं, आप इसमें ये भी RSI बताने की जरूरत, देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर मेन एम RSI तो आप किसी भी प्रेग्नेंट पेशेंट में करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपने उनको ये मेंशन करना है जो वो सुनना चाह रहे हैं, या जो उनका टास्क है। आपने पहला जुमला ये बोल देना है कि देयर इज ऑल्टर्ड फिजियोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कंसिडरेशन इन प्रेग्नेंट पेशेंट, सो दैट शुड बी इन योर माइंड, एंड all the management should be focused around management of difficult airway and aspiration risk. In addition to that, there will be additional problem that this patient is having fixed cardiac output, so you have to be very careful about it. So it is better to have arterial line, number one, and number two, you can go for modified rapid sequence induction which has less hemodynamic sequelae as compared to rapid sequence induction. एक बात हो गई। उसके बाद जो आप एक और एक्स्ट्रा बात ये बोल दें, it is better to take invasive line first, and at the same time you have to blunt the stress response. For that, even usually it is not recommended to give opioid before the delivery of the baby, but in this patient, because it is mandatory to blunt the stress response, so it is better to give it and inform the neonatologist. समझ आ गई बात? अब इसके अंदर वो आपसे देखें, बात समझ, पता होता क्या प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम भी साथ ही बता रहा हूँ। जीशान हिस्ट्री के अंदर कहानी सुना रहा है, आप जो आपको चीज आपको आती है रैपिड, वो आपसे रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन का वाइवा नहीं ले रहे। व्हाई यू आर टेलिंग टू मच डिटेल ऑफ रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन के मैं ये करूंगी, मैं अगर उसने आपसे पूछना है रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन, वो आपसे पूछ लेगा। आमतौर पे टेबल वाइवे में स्किल की असेसमेंट नहीं होती है। टेबल वाइवे के अंदर आपसे वो इंटुबेशन करवा के नहीं देख रहे। टेबल ऑस्की के अंदर ये चीज होती है। ऑस्की के अंदर वो आपसे ये पूछना एक्सपेक्ट करेंगे। इसलिए पहला मैसेज इस सिनेरियो के अंदर, पहला मैसेज, प्लीज आपने एक जुमले के अंदर तमाम कहानी को कूजे में बंद करने का प्रैक्टिस करनी है। दैट इज व्हाट इज इट, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम्स है ना, जो आपने फोकस करनी है अभी तक की उसमें मैं आपको कर रहा हूँ करेक्ट, कि पहली बात आपने ये बतानी है कि ये पेशेंट एक हाई रिस्क पेशेंट है, ठीक है। हाई रिस्क पेशेंट है, स्पेशली अगर उसका क्रिटिकल स्टेनोसिस है तो उसकी तो इवन इसकी हाई कार्डिक मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी हो सकती है। तो एक तो बात ये कि आपने मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जैसे आपने बताया था, एक बात हो गई। दूसरी चीज ये है कि आपने सिवियरिटी को आपने स्ट्रेटिफाई करना है कि वो किस सिवियरिटी के रिस्क पे, एक बात। फिर दूसरी चीज ये है कि आपने उस हिसाब से आपने प्लान चेकआउट करना है। और क्योंकि ये इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन है तो इसके अंदर कोई भी अगर ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है तो आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। वो आपका डिसीजन नहीं होगा, वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में ही आप बता दें कि आपका ये फोकस होगा कि एक तो आपने सिवियरिटी को देखना है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, स्पेशली एको एंड अदर इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। तो उसकी बेस पे, क्योंकि देखो ये इस वैसे तो आपसे सीबीसी भी आपको पता होना चाहिए और आपको एलएफटीज भी पता होने चाहिए, लेकिन इसके अंदर सीबीसी, एलएफटीज, आरएफटीज इतने इंपॉर्टेंट चीजें हैं ही नहीं ना। इसके अंदर वो जब टेबल वाइवे में उन्होंने इतनी सारी चीजों को फोकस करना है तो वो ये सुनना चाह रहे हैं कि इसके अंदर किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, ठीक है। आप उसको ऐसा आंसर दें कि आप में उसकी दोनों चीजें कवर हो जाए, ठीक है। एम आई राइट? समझ आ गई ये बात? कोई कंफ्यूजन? तो इसके अंदर दूसरी बात ये कि आप ये कहें कि इसके अंदर अगर वो उसकी जो सिवियरिटी का इंडेक्स है वो अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो आप उसके अंदर एपिड्यूरल लगा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि एक तो आपने वही जो मैंने बता दिया कि आपको हाई डोज देनी पड़ेगी और आपको एंटीकोगुलेशन को मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप जीए दे रहे हैं तो वहां पर भी एक तरफ आग है, एक तरफ खूह है, तो आपने चूज करना है कि कैसे आपने मौत को बचाना है, आग में जाके भी या छलांग मार के भी। दोनों तरफ है तो तबाही। तो इसलिए आपने ये कहना है कि ये कोई भी प्लान सेफ नहीं है और यू जस्ट हैव टू फाइंड अ वे एंड यू हैव टू मैनेज इन द वे कि आप उसकी मॉर्बिडिटी को एज मच एज पॉसिबल आप रिड्यूस करें, ठीक है। और बाकी जो है वही है कि एक जुमला आप आगे बताने ही लगी थी, मैंने आपको बीच में काट दिया। कोई आप हिस्टामिन रिलीजिंग दवाइयों को अवॉइड करेंगे, आपने ऐसी दवाइयां अवॉइड करनी है। इसमें आपके जो गोल, ये बोल दें बजाय इसके ये कि टाइम
क्योंकि मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं कि वो इस कहानी में रहते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव में ही आईसीयू अरेंज करें, तो आपने पहले बता दें पोस्ट ऑपरेटिव तक, तो बात पर पहुंचेगी ना। अगर आपने शुरू में ही उसको कंसर्न, जब आप पेशेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसी वक्त अगर आप बता देंगे ना, ये बातें भी बता देंगे कि इंट्रा ऑपरेटिव हमने लॉजिस्टिक्स अरेंज करने हैं, क्योंकि बहुत हाई रिस्क पेशेंट होगा, तो थिएटर को इन्फॉर्म करना है कि भाई हमारे पास कल एक बहुत सीरियस पेशेंट है जिसके अंदर हमने हर चीज को पहले से अरेंज करना है, हमने टेम्परेचर को वो करना है, हमने अगर ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग का सारा जो हमारे पास प्रोटोकॉल होना चाहिए, और उसके बाद जो है हमने जो दवाइयाँ उसकी एक्स्ट्रा जरूरत है वो हमें सारी चीजों को अरेंज रखना है। ठीक है, ये आप आंसर प्री ऑप में ही बता सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इंटर ऑप तक ही का लफ्ज लेके आप बोलें, आप इसको पहले ही उनको एग्जामिनर को आपने ये बताना है ना कि आपको ये बात पता थी कि आपके गोल्स ये हैं, आपके गोल्स हैं कि साइनसिज्म रखनी है और हार्ट रेट को बढ़ने नहीं देना और सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस को कम नहीं होने देना और हाइपरकार्बिया नहीं होने देना और हाइपोक्सिया नहीं होने देना और हाइपोवोलीमिया नहीं होने देना, क्योंकि हर चीज ये हार्ट बेचारा नाजुक है, को कंपेंसेशन नहीं कर सकता, वो जिस चीज पे है उसी पर चल रहा है, उसी पर चलाते रखते हैं आप। अगर उसमें कोई ऊपर नीचे चीज होगी तो पेशेंट फेलियर में चला जाएगा, पल्मोनरी एडीमा हो सकता है, और इसके अंदर वो अक्सर औकात पेशेंट को करवाते हैं इंट्राऑपरेटिव एट्रियल फिब्रिलेशन। तो आपने एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए आपने यही देखा आंसर जो ACLS प्रोटोकॉल के हिसाब से वही दिमाग के अंदर रखना है। अनस्टेबल है तो आपने उसको डीसी कार्डियोवर्जन करना है, स्टेबल है तो आपने रेट कंट्रोल एंड रिदम कंट्रोल करना है, और उसको पोस्ट ऑपरेटिवली आपने स्ट्रेटिफाई करना है, या आपने उसको अगर इसका कि क्लॉट है इंट्राऑपरेटिव तो जब भी अगर न्यू ऑनसेट एट्रियल फिब्रिलेशन होगी तो उसको कार्डियोवर्ट ही नहीं करना, हर को 180/100 पे भी आप कार्डियोवर्ट कर देंगे? मैं पूछ रहा हूँ सर। नो सर, आप बताइए ना, सोचो ना, सोचो। देखो एट्रियल फिब्रिलेशन का या कोई भी टैकीरिथमियाज हैं उनका आप जहन में रखें कि आपने ACLS के एल्गोरिथम को ही फॉलो करना होता है, ठीक है, जो उससे बाहर नहीं आपने जाना होता, ठीक है। आप उसमें कार्डियोवर्जन की इंडिकेशंस याद रखें, कार्डियोवर्जन SVT अनस्टेबल, VT अनस्टेबल, SVT एट्रियल फिब्रिलेशन, VT ये अनस्टेबल अगर होंगे तो आपने उसमें कार्डियोवर्जन, ठीक है। अगर पल्सलेस VT या VF के अंदर आपने डिफिब्रिलेट करना है, ठीक है। और अगर SVT होगा, स्टेबल होगा, तो आपने वेगल मैनुअर्स करने हैं और आपने उसमें एडिनोसिन देनी है, और उसके बाद आप बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये SVT का एल्गोरिथम है। जो VT है, जो आपका बेसिकली जो PVCs है, दिस इज VT। जो पॉलीमॉर्फिक VT है उसके लिए आपका वो है मैग्नीशियम सल्फेट या पेसिंग, और इन एडिशन टू दैट आपका एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन आपने सबसे पहले बोलना है, ठीक है। और जो है वो आपके VT जो है वो अगर स्टेबल VT है तो उसके अंदर आप लाइडोकेन भी दे सकते हैं, लाइडोकेन नहीं होता तो आप प्रोकेनामाइड और अमियोडोरोन का याद रखें। ये एल्गोरिदम आपके टिप्स पे होनी चाहिए, वहां पर ये कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस तरह की, बिल्कुल, ठीक है। जीशान क्लियर हो गए? जी सर। ठीक है, और उसके अंदर आपने यही बोलना है कि इमीडिएटली कॉल फॉर हेल्प। अब इसके अंदर आप कार्डियोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व कर लेंगे, या इंट्राऑपरेटिवली भी आप कोशिश करेंगे कि अगर उसकी 12 लीड DCG हो सकती है, पॉसिबल है, तो आप सर्जरी चलती रहेगी, आप उसकी 12 लीड DCG भी करवा लेंगे, और 12 लीड DCG करवा के आप उसका, और साथ आप उसके एंजाइम्स भी भेज देंगे, ABGs भी भेज देंगे, तो टू सी द एनी रिवर्सिबल कॉज, ठीक है। एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो उसको कार्डियोवर्ट करेंगे, अगर स्टेबल है तो उसके अंदर बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या डाइजॉक्सिन से आप उसको लोड करेंगे, या अमियोडोरोन भी दे सकते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने, नादिर ने आंसर भेजा था रिकॉर्ड करके, और किसी ने नहीं भेजा था, एक लड़के ने शायद और भेजा था, दोनों उस ग्रुप में, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, और इसके अंदर बेसिक बात जो मैंने इस सिनेरियो के अंदर डिस्कस करते हुए मैं आपको ये बताई है भाई, टेबल वाइवे में ये ना, खुदा के लिए आपके आगे मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मैं आई विल टेक हिस्ट्री, आई विल डू एग्जामिनेशन, इन एग्जामिनेशन आई विल सी दिस, खुदा के लिए यू आर जस्ट स्क्रैचिंग द बैक ऑफ द एग्जामिनर। वो आपको चपेड़ मारने, उसका दिल ये चाह रहा होगा कि मैं चपेड़ मारूं कि ये लॉन्ग केस देने आया है, या ये ऑस्की देने आया है, या ये टेबल वाइवा देने आया है। नहीं बोलना है आपने इवैल्यूएशन का लफ्ज बोल के, आपने लफ्ज बोल देना है हिस्ट्री एग्जामिनेशन और रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन की बेस पे आप स्ट्रेटिफाई करेंगे रिस्क फैक्टर्स। ये जुमला आपका गलत नहीं है, ये मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूँ,
या बोलना भी है तो क्विक वर्ड्स में बोलना है कि रेलिवेंट हिस्ट्री रिलेटेड टू कार्डियक फेलियर, रेलिवेंट हिस्ट्री रिलेटेड, रेलिवेंट एग्जामिनेशन हिस्ट्री एंड एनी इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड, अगर आप मेंशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका फायदा ये होगा कि आपका टाइम बचेगा, आप एग्जामिनर को जिस चीज में घुसना होगा वो खुद आपको घुसा देगा, ठीक है। जब वो देखेगा कि इसकी अप्रोच ठीक है तो वो आपको जिस चीज को उसने टच करना होगा वो खुद टच कर लेगा, उनको पता है, दे आर वाइजर देन यू, कि उन्होंने 5 मिनट के अंदर ये पूरा सिनेरियो पूछना है। और ये एग्जाम में आता है, अक्सर औकात आता है, क्योंकि एक, और इसके अंदर आपको अच्छा एक दो बातें इसमें रह गई हैं। जीशान आप बताओ, इस पेशेंट के अंदर इंट्रा ऑपरेटिवली आपने कौन कौन सी दवाइयां अवॉइड करनी जी? इंट्राऑपरेटिवली सर इसमें आइसोफ्लोरेन, डेस्फ्लोरेन हम नहीं देंगे, वो टैकीकार्डिया Okay, करते हैं। हम आगे। एंटी हिस्टामिन रिलीजिंग ड्रग्स जो हमारी एट्राक्यूरियम वगैरह हैं ये भी हम अवॉइड करेंगे। सक्स अवॉइड करेंगे। ओके, एनाल्जेसिया में कौन सी चीजें अवॉइड करेंगे? मॉर्फिन अवॉइड करेंगे सर। और मॉर्फिन से ज्यादा जो खतरनाक चीज है वो पहले बताएं। हमारी पैथेडीन एंड ट्रेमाडोल, पैथेडीन एंड ट्रेमाडोल, ठीक है। और मसल रिलैक्सेंट में एट्राक्यूरियम से ज्यादा खतरनाक चीज आपने नहीं बोली है, वो पैनक्रोनियम है, ट्यूबरक्यूलोरिन है, जिनसे टैकीकार्डिया, देखें हिस्टामिन रिलीज है लेकिन टैकीकार्डिया इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आप पैथेडीन, हाँ ठीक है, आगे चलें। रिवर्सल एजेंट्स को भी अवॉइड करेंगे, इस तरह का मसल रिलैक्सेंट देंगे कि हमें रिवर्सल ना करना पड़े। या सुगामेडेक्स अगर हो तो दैट विल बी अ बेटर चॉइस, ठीक है। और एक और चीज दरमियान में रह गई, प्रेग्नेंट पेशेंट के रेफरेंस से कौन सी दवाइयों की जरूरत पड़ती? ऑक्सीटोसिन। वो आपने यहाँ ज़हन में रखना है कि आप उसमें ऑक्सीटोसिन अवॉइड करनी है, ऑक्सीटोसिन अवॉइड करनी है, या देने की जरूरत है तो उसको बोलस में नहीं देना, इन्फ्यूजन में देना है, इन्फ्यूजन में देना है। व्हाट अबाउट ये जो एर्गट है, एर्गट दे सकते हैं? नहीं सर। क्यों? पल्मोनरी हाइपरटेंशन करती है। एर्गट से पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है या सिस्टेमिक हाइपरटेंशन होती है? वेज़ोकंस्ट्रिक्टर होता है कि दोनों होती है, मतलब चलें ये कंफर्म कर लें, लेकिन ये है कि ये तैयबा दे सकते हैं? नो सर, नहीं सर, आपने अगर देना भी है तो मीजोप्रोस्टोल दे सकते हैं वो, लेकिन अगर सिंटो भी देनी है या वो बहुत केयरफुली देनी होती है, और गॉड भी ना दें, ये फ्लैश पल्मोनरी एडीमा में जाने के चांसेस होते हैं इन पेशेंट्स के। ओके ओके ओके, ठीक है। ये मुझे क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, क्योंकि सिस्टेमिक वेज़ोकंस्ट्रिक्शन। अच्छा, व्हाट अबाउट वो जो होता है आपका PGF2 अल्फा? कार्बोप्रोस्ट जी सर, इसमें जो चीज उन्होंने सेफ लिखी है ना वो एक ही लिखी है, वो है मीजोप्रोस्टोल आप दे सकते हैं, बाकी सबके साथ पल्मोनरी एडीमा होता है, इवन मीजो के साथ भी होता है, बट लीस्ट लाइकली है। अब आप बाकी सारे ही करते हैं। इसमें आप जुमला ये बोल दें, मैं आपसे सुनना चाह रहा था कि आप ये जुमले को, मैंने जो आपको सियासतदान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बन जाएंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। देखें, इसके अंदर कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है। अब अगर यहाँ पे पता है, अगर आप ये बोलेंगे ना नहीं देंगे, तो पता है एग्जामिनर क्या कहेगा? एग्जामिनर कहेगा उसको ब्लीडिंग हो रही है, सर्जन यूट्राइन रिलैक्स हो रही है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको सिर्फ ये कहेंगे नहीं जी मैं तो नहीं दे सकता, आप करें जो करना है। रिस्क बेनिफिट सब देखें, रिस्क वर्सेस बेनिफिट देखेंगे। और एक चीज और आप बोलें जरूर, ये पार्ट ऑफ है कि इट इज बेटर टू स्टॉप और रिड्यूस एज मच एज पॉसिबल इनहेलेशनल एजेंट, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर कॉजिंग टोकोलिसिस, ठीक है। वो सारे यूट्रस को रिलैक्स करते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि इट इज बेटर इफ वी कैन शिफ्ट द पेशेंट टू टीवा फॉर सम टाइम। आप उसमें उसको यू कैन गिव अ स्मॉल डोज ऑफ केटामीन, स्मॉल डोज ऑफ मिडाजोलैम टू अवॉइड दिस वन, क्या उसको कहते हैं, अवेयरनेस, ठीक है। ये बेसिकली ये स्टेटमेंट आप मुख्तलिफ कंडीशंस में आप बोल सकते हैं, ठीक है। केटामीन अगर आप यहाँ बोलेंगे तो आप एग्जामिनर इस बात पे आपसे नाराज हो सकता है, इसलिए माइट्रल स्टेनोसिस में केटामीन ना बोलिएगा। लेकिन एनी अदर पेशेंट इन विद ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज आप ये कह सकते हैं कि आप उस वक्त उसको मिनिमम पॉसिबल मैक पे कर दें, क्योंकि जो इनहेलेशनल एजेंट है उसका यूट्राइन की रिलैक्सेशन पे इफेक्ट होता है, यानी कि इट विल बी कॉजिंग यूट्राइन रिलैक्सेशन,
सो इट इज बेटर टू कन्वर्ट इनटू टीवा, क्योंकि उस टाइम पे आपकी प्रिवेंशन आपने करनी है अवेयरनेस की, वो ठीक है बात, लेकिन आपकी प्रायोरिटी उस टाइम पे ब्लीडिंग को अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि ब्लीडिंग होगी तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो ये है जी ये आंसर इसके, उसका मतलब मैक्सिमम जो है ओपियाइड्स रिलेटिवली आर गुड, ठीक है, जो है वो जो मॉर्फिन होता है उससे सिस्टम में रिलीज होती है, मगर ये इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है कि आप अगर आपको रिस्क वर्सेस बेनिफिट में जो आपने एनाल्जेसिया अच्छा देना है उसको, ठीक है, आप उसको फेंटानिल दे दें, आप उसको पोस्ट ऑपरेटिवली जैसे अभी डॉक्टर हुमैरा ने मेंशन किया है पीसीए, आप पीसीए दे सकते हैं, आप उसको एपिड्यूरल लगा दें, आपने उसकी एंटीकोएगुलेशन को मैनेज करना है, उसको पोस्ट ऑपरेटिवली आपने स्ट्रेस से उसको मॉनिटर करना है। तो ये सारी कहानी है जो अब आप, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो चीजें वो एग्जामिनर ने आपसे उगलवानी होगी वो आपसे उगलवा लेगा, लेकिन अगर आपने शुरू में उसको बेसिक सेफ्टी बता दी है कि भाई इस पेशेंट में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि माइट्रल स्टेनोसिस है, पहले मैंने उसका रिस्क को स्ट्रेटिफाई किया, मैंने मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की, मैंने प्लान किया, मैंने आईसीयू को अरेंज किया, मैंने सारे लॉजिस्टिक्स अरेंज किए, मैंने एंटीकोगुलेशन को मैनेज किया, अगर कोई चीज ऑप्टिमाइज हो सकती है वो मैंने वो कर लिया, इन एडिशन टू ऑल द एंड ऑल्टर्ड फिजियोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कंसिडरेशंस, और मैंने उसके लिए मैंने ब्लीडिंग को भी एंटिसिपेट कर सकते हैं, और क्योंकि इसलिए आप एंटिसिपेट करेंगे क्योंकि किसी भी प्रेगनेंसी के अंदर ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज हो सकता है, ठीक है, तो अब नॉर्मल पेशेंट शायद ज्यादा बेहतर तौर पे टॉलरेट करेगा, इस पेशेंट के अंदर टॉलरेंस जो है वो पहले ही कार्डियोवास्कुलर सिस्टम उसका लिमिटेड है, तो अगर ये पेशेंट ब्लीड कर गया और आपके पास रिजर्व ना हुआ, आपने अरेंज नहीं किया है चीजें, तो द रिजल्ट विल बी डेट्रीमेंटल, ठीक है, तो आपने ये बातें उनको बतानी है। अगर आप देखें कम अल्फाज में बोलने का बेस्ट तरीका ये है कि आप उसको डेमोग्राफिक्स का नाम याद रखें, पेशेंट डेमोग्राफिक्स, हिस्ट्री to see the patient demographics, medical, surgical and anesthetic history, ये इतने जुमले में आपकी सारी बातें हो जाएंगी, and to see any comorbid। अब आप comorbid का नाम लेके डिटेल कहानी, मैं जिससे भी पूछता हूँ वो अपने ऊपर फर्ज समझता है कि वो सारी बीमारियों का नाम ले, भाई जब कोमॉर्बिड का आपने नाम ले लिया ना तो आपने एग्जामिनर को ये बता दिया है, या जैसे एल्डरली पेशेंट के बारे में बता रहे हैं तो आप कहें कि भाई देयर आर मोर चांसेस ऑफ कार्डियोवास्कुलर, एंडोक्राइन और एनी अदर कोमॉर्बिडिटी इन दिस एज ग्रुप, यहां तक बता के बात खत्म हो गई। अगर उसने आपको इस बात पे खंगालना है तो वो आपसे सवाल पूछ लेगा। अब होगा ये कि शुरू में ही तैयारा उड़ेगा ही नहीं, वो रनवे पे ही घूम रहा है, घूमे जा रहा है, मेजॉरिटी लोग रनवे से ऊपर लेके जा ही नहीं पा रहे, वो हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन से पे ही वो एग्जामिनर सड़ता जाएगा, आप उसको तपाते जाएंगे। तो अगर आप शुरू में वो बातें जो काम की बातें आपने उसको बता दी हैं तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। ये वही चीज है नादिर, ये कार्डियोमायोपैथी का सिनेरियो आप जो पूछ रहे हैं 35% इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, तो ये इस हमने डिस्कशन के अंदर हम लोगों ने माइट्रल स्टेनोसिस के बारे में भी सारी बातें पढ़ ली हैं, और हमने ऑब्स्टेट्रिक एनेस्थीसिया में तकरीबन सारी बातें डिस्कस हो गई हैं। इसके अंदर जो 2-3 चीजें हैं वो एक इसी में जो एक और वो पूछ सकते हैं कार्डियोमायोपैथी, तो कार्डियोमायोपैथी के अंदर भी यही चीज है, रिस्क वर्सेस बेनिफिट, आप उसके अंदर एपिड्यूरल भी लगा सकते हैं और आप उसको जनरल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं। हर चीज के अंदर आपने रिस्क वर्सेस बेनिफिट, और आपने जो प्लान, अगर आप जीए देंगे तो ये होगा, स्पाइनल देंगे तो ये होगा, कार्डिक आउटपुट मॉनिटर करने का कह दें अगर पॉसिबल है, इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का कह दें, बाकी सारी बातें कॉमन, बाकी सारी वही बातें हैं जो भी हम लोगों ने डिस्कस की। ठीक है नादिर, यू क्लियर? जी सर। आपके दिमाग में क्या बात है और क्या होना चाहिए? सर कुछ भी नहीं, जस्ट कंफर्म कर रहा था, मुझे भी यही था कि यही चीज नहीं है सर। देखो ये कोई भी कार्डियोमायोपैथी का पेशेंट है, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, जिसके अंदर आप स्विंग्स ऑफ ब्लड प्रेशर फील कर रहे हैं, या आपको लगता है कि इस पेशेंट के अंदर जो एग्जेजरेटेड रिस्पांस आएगा, तो आप रैपिड सीक्वेंस के बजाय आप कह दें मॉडिफाइड रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन, तो उसके अंदर हीमोडायनेमिक स्ट्रेस कम है विद द अवेलेबिलिटी ऑफ रोकोरोनियम एंड सुगामेडेक्स इफ इट इज देयर, तो ये बेहतर ऑप्शन होगी, ठीक है। अगर और ऑप्शन नहीं है रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन के अलावा, तो उसके अंदर भी आप कोशिश ये करेंगे कि आपने इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कर ली और आपने किया एंटिसिपेट किया, आपके पास इमरजेंसी मेडिसिन रेडी हो कि अगर आपको देना पड़े तो आप फौरी तौर पे दे सकें। ये तरीकाकार है इसका, ठीक है। इन एडिशन टू दैट फ्यू वर्ड्स के यही सिनेरियो, यही सब कुछ हो, इसमें माइट्रल स्टेनोसिस की जगह पेशेंट प्री एक्लेम्पशिया का है, उसके अंदर क्या चीज डिफरेंट होगी, कौन बताएगा?
हमाद हसन हुसैन, आपका भी वाइब है? हमाद हुसैन, ये डॉक्टर जे, जी कौन बोलना चाहता है? हाँ, हैंड रेस कर दे। सर सर उसमें हमें प्रीक्लेम्पशिया का अगर सिनेरियो है तो अपार्ट फ्रॉम द थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हमें एक तो हाइपरटेंशन का कंट्रोल पता होना चाहिए कि किस तरह का पेशेंट का चल रहा है। उसमें हमारा एक हम प्रीलोड करेंगे पेशेंट को, मैग्नीशियम देंगे प्रोफिलैक्टिकली, और उसमें हमारा एनेस्थीसिया ऑफ चॉइस विल बी एपिड्यूरल। देयर इज नो एनेस्थीसिया ऑफ चॉइस। देखें यहाँ पर आप अपने, जब आपने कह दिया है कि नहीं जी मैं तो इस रास्ते पे जाऊंगा, अब आपके पास आप वापस नहीं आ सकते। क्या इसके अंदर एनेस्थीसिया ऑफ चॉइस है? क्या इसके अंदर कोएगुलोपैथी नहीं हो सकती? क्या इसके अंदर रेज्ड आईसीपी नहीं हो सकता? तो हाउ कैन यू से कि ये एनेस्थीसिया ऑफ चॉइस है? अभी मैं आपको यही बात सिखा रहा हूँ। इसकी में कोई जनरलाइज रूल नहीं है कि पीआईएच के अंदर विच इज सेफ। पीआई इसके अंदर भी आपने वही जुमला बोलना है कि रिस्क वर्सेस बेनिफिट एंड इंडिविजुअलाइज अप्रोच, बिकॉज द सिचुएशन इन पीआईएच कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट पेशेंट। ठीक है? or if you are giving if you are giving regional anesthesia, these are the problems you can face, like sudden hypotension because of relatively reduced intravascular volume and high sympathetic tone which is decreased, and there can be sudden hypotension, exaggerated response, number 1. Number 2, presence of impending coagulopathy. तो ये तो कभी भी रीजनल एनेस्थीसिया जो लगाते सब बंदा प्रैक्टिकल छोड़ दें आप एक लम्हे के लिए। वहां पर आपने सिर्फ एग्जामिनर को ये बात बतानी है कि जब भी हम एपिड्यूरल या स्पाइनल लगा रहे होते हैं पीआईएच के पेशेंट में 100% कोई सेफ नहीं है, ना 100% जीए सेफ है, ना 100% रीजनल सेफ है। तो है ही, मैंने अभी जो जुमला बोला है, एक तरफ आग है एक तरफ खूह है। अब आपकी मर्जी है कि आप छलांग मारें या आग में कूदें, दोनों तरफ प्रॉब्लम है। ठीक है? और एक लम्हे के लिए प्रैक्टिकल कंडक्ट को हटा दीजिए। वहां वाइवे में आपको वो ड्रामा देखना चाह रहे होते हैं, प्रैक्टिकली वो, मैं आपको एक इसकी एग्जांपल देता हूँ। केटामीन के बारे में दुनिया जहान की बकवास है। सारा पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया जो है वो केटामीन से ही इंडक्शन कर रहे होते हैं लोग। हालांकि पेपर पे क्या लोग कहते हैं जी पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है, ये होता है, वो होता है। मैं तो हर पेशेंट में केटामीन देता हूँ और हार्ट रेट कम हो जाता है अगर उसको थोड़ा डोज में दें। अगर उसका सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स आपने कम कर दिया, उसकी पेन कम कर दी है, तो यकीन करो केटामीन देने के बाद हार्ट रेट कम होता है। तो फिर समझ आती है कि चीज़ें कि क्या हमें किस तरह से हमें एक साइड तो लेकिन एग्जाम में नहीं बोल सकते। एग्जाम के अंदर डिफरेंट दुनिया होती है, आपने वहां पर इस तरह का आंसर देना होता है जहां पे आपके पास दोनों साइड पे हो जाए। ठीक है? तो जो उसी में ही आपके जुमले को मैं ऐड करूंगा, प्लीज उसको याद कर लें पीआईएच के रेफरेंस से, कि इसके अंदर आपके 3 कंसर्न्स होते हैं। नंबर 1, आपने डेफिनेटली आपने कहा कि तो उसके अंदर भी वही जुमला बोल दें कि ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन वी विल सी हाउ मच ऑफ द सिविरिटी एंड एंड ऑर्गन डैमेज बिकॉज ऑफ पीआईएच। ये इस जुमले के अंदर सब कुछ आ गया यार। एग्जामिनर आपको शक्ल, आपको एग्जामिनर की शक्ल से पता लग जाएगा, एग्जामिनर का मुंह बंद हो गया है आपके इस आंसर से। अगली बात ये होगी, अगला उसमें ये होगा कि आपके 3 हैं चांसेस कि आपका एक, आपने कंट्रोल of blood pressure, this is one target. Number 2, control or prevention of fits. Control of blood pressure, control or prevention of fits, and number 3, delivery of the baby. ये 3 आपके कंसर्न्स है, उसके बगैर पीआईएच आप ट्रीट कर ही नहीं सकते। ठीक है? जब तक बेबी आउट नहीं होगा तब तक नहीं होगी। इन तीनों चीजों के दरमियान में एक बैलेंस लाके as much as you can progress with the pregnancy you do it. आप उसमें अगर प्रीमेच्योर उसने बता दिया आपको, तो आप उसको कहेंगे कि we will discuss with the obstetrician, we will try to control the blood pressure and control of the fits. There are 2 lives, but the priority is given to the life of the mother. So as much as we can prolong with the optimization of the patient and maintaining the airway breathing and circulation, we will try to proceed, and if not, priority is given to the mother. ये इस जुमले में आपकी सारी बातें आ गई हैं। चॉइस ऑफ एनेस्थीसिया भी आ गया, इसमें कोई चीज सेफ नहीं है, ना इसमें स्पाइनल सेफ है, ना इसमें एपिड्यूरल सेफ है, ना इसके अंदर जीए सेफ है। मैं आपको भी साबित कर देता हूं, आपने स्पाइनल लगाया, ठक ब्लड प्रेशर फॉल कर जाएगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज।
नंबर 1। नंबर 2, क्या आपको पता होगा कि इस पेशेंट को फिट्स नहीं पड़ सकते? क्या फिट्स का ताल्लुक सिर्फ ब्लड प्रेशर के कंट्रोल से होता है, या प्री इक्लिप्टिक पेशेंट में किसी भी वक्त फिट्स पड़ सकता है रिगार्डलेस ऑफ ब्लड प्रेशर? यस, व्हेन यू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर द चांसेस ऑफ फिट्स विल बी रिड्यूस। मगर ये कोई रूल नहीं है कि प्री जो भी जहां, अच्छा एक और बात, ब्लड प्रेशर ज्यादा प्री इक्लेम्पशिया आप लेबल कब करेंगे जी? When will you label the patient as pre-eclamptic? जी Sir, जीशान। when systolic blood pressure, हाँ, ओके ओके, आप ही sir, बता when दो। systolic blood pressure is greater than 140 and diastolic greater than 90 क्या ये on after डायग्नोस्टिक 20 चीज है? weeks, after 20 weeks of gestation, 140 over 90 after 20 weeks of gestation, ओके with the protein urea of 300 milligram per day, ओके, एंड and urine dipstick 2+ proteins. ये प्रोटीन हो गया ना, एक चीज हो गई। आपने एक बात बताई, ब्लड प्रेशर को भी मैं काउंट नहीं कर रहा। आगे अगली बात, edema sir, एनी सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट। Yes, समझ PIH रही? plus systemic involvement is देखिए, ब्लड greater. प्रेशर इज नॉट द, आप ब्लड प्रेशर तो ऑफ कोर्स है ही ना। आप ये जुमला इस तरह बोलें, आपको इतना खूबसूरत बताने की जरूरत नहीं है कि 140/80, वो तो ऑफ कोर्स आप उसमें ये बोलें कि हाइपरटेंशन विद प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन यूरिया एंड एनी सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट, तब आप उसको कहेंगे कि ये जो है ये प्री एक्लेम्पशिया है। और उसके साथ अगर फिट्स पड़ गए तो वो प्री एक्लेम्पशिया हो गया। Eclampsia. और अगर उसके अंदर सीवियर सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट हो गई है, उसको सेरेब्रल रेज्ड आईसीपी के साइन आ गए हैं, सेरेब्रल एडिमा हो रहा है, उसको कोएगुलोपैथी हो रही है, उसको सीवियर पेन इन एब्डोमेन हो रही है बिकॉज ऑफ लिवर इन्वॉल्वमेंट, उसके साथ उसको यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, या ये रिस्क फैक्टर है, तो उसके अंदर पेशेंट एआरएफ में जा सकता है। अच्छा, एक और बात ये कि आप स्पाइनल या एपिडुरल का नाम लें तो आप जीशान, कमिंग बैक टू योर वर्ड, आपको मैंने वर्ड पकड़ लिया है। आप मुझे ये बताओगे कि आप पीआईएच के पेशेंट के अंदर क्या आपको रेज्ड आईसीपी मिल सकता है? तो रेज्ड आईसीपी के अंदर एपिड्यूरल या स्पाइनल सेफ होता है? नहीं सर, क्यों नहीं हो जाती है? समझ आई? तो आपने अपने ऊपर ये जुमला हराम कर लेना अब कि माई चॉइस। जैसे नादिर है ना, नादिर को मेरे से शुरू में जब नादिर मेरे पाले पड़ा था तो नादिर को एक दफा इसने बोला था सर बेस्ट चॉइस ये है, तो उसके बाद अब नहीं बोलता नादिर बेस्ट चॉइस। एम आई राइट नादिर? ठीक है, तो आपने वहां पर बेस्ट चॉइस, आप वहां पर कोई कस्टमर सर्विस के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है कि आप अपनी चीज को सेल कर रहे हैं कि मैं कह रहा हूं बेस्ट ऑप्शन है। नो, नथिंग इज बेस्ट, नथिंग इज बेस्ट। ये प्रॉब्लमैटिक पेशेंट वो आपसे पूछ ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि दे आर इन ग्रे एरिया। मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी किथे डावा, मुझे ये नहीं पता मैंने किस तरफ जाना है। इस तरफ जाऊंगा तो इस तरफ भी प्रॉब्लम है, उस तरफ जाऊंगा तो आपने एग्जामिनर को ये बताना है एपिड्यूरल के ये एडवांटेज है, स्पाइनल का ये एडवांटेज है, जीए का ये एडवांटेज है। जीए का एडवांटेज क्या है? एयरवे का बेटर कंट्रोल है। ठीक है, यस, स्ट्रेस रिस्पांस आएगा, आप उस स्ट्रेस रिस्पांस को ब्लंट करें और उसको आप उसके अंदर एंटिसिपेट करें। ठीक है, जो एपिड्यूरल का और क्या फायदा है? हीमोडायनेमिक का ऊपर अच्छा इफेक्ट आ जाएगा, लेकिन कोएगुलोपैथी हो सकती है। अगर कोएगुलोपैथी हो गई, आपने एक ब्लाइंड प्रोसीजर कर दिया, उसके बाद आप यू कैन नॉट कंट्रोल, आपके एपिड्यूरल हीमाटोमा होने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, स्पाइनल आपने लगाया, सडन हाइपोटेंशन हो गई, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप रीजनल का बता रहे हैं तो आप कहें कि रीजनल के अंदर आप पॉलीफार्मेसी को अवॉइड कर लेंगे, देयर इज रिलेटिवली स्ट्रेस रिस्पांस उसका कम हो जाएगा, ब्लीडिंग के चांसेस रिलेटिवली कम होंगे, और उसका जो है वो डीवीटी के चांसेस भी कम होंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी एक प्रोकोएगुलेंट फेज है, तो रीजनल लगाने के ये एडवांटेजेस हैं। ठीक है, और जीए देने के ये एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो हमने पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स को देखना है, पेशेंट की कंडीशन को देखना है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बना के तौर पे हमने इस चीज़ों को एवेलुएट करके हमने डिसाइड करना है कि हमने क्या करना है। ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर के लिए आप लबिटालॉल या हाइड्रोलाजीन इसका नाम ले लें, आपसे वो डोज भी पूछ सकते हैं, 5 to 10 मिलीग्राम दोनों का ही है तकरीबन मेरे ख्याल से। और आपने जो है वो शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर्स आप स्ट्रेस रिस्पांस को ब्लंट करने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, और लाइडोकेन का बता सकते हैं आप, और फेंटानिल या रेमीफेंटानिल है तो वो बता सकते हैं। उसके बाद जो कंट्रोल ऑफ ब्लड फिट्स हैं या इवन मैग्नीशियम का ब्लड प्रेशर पे भी इफेक्ट है, तो मैग्नीशियम की थेरेपी आपने जब भी बतानी है, साथ ही आपने बोलना है
कि आपने उसका मैग्नीशियम जब भी थेरेपी स्टार्ट करनी है, आपने उसका यूरिन आउटपुट देखना है, आपने उसके रेस्पिरेटरी, कार्डिक और जो है आपके डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस हैं, उनके ऊपर उसका इफेक्ट और यूरिन आउटपुट को करना है। क्योंकि यूरिन आउटपुट ये नहीं होता, मैग्नीशियम की वजह से किडनी डैमेज नहीं होती, लेकिन मैग्नीशियम किडनी से एक्सक्रीट होता है। तो अगर आप यूरिन आउटपुट उसका नहीं आ रहा और आप उसको मैग्नीशियम थेरेपी करेंगे तो उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप मैग्नीशियम थेरेपी जब भी दे रहे हैं तो मेंटेन द यूरिन आउटपुट। ठीक है, और आपको वो टॉक्सिसिटी का आपको लेवल्स पता होने चाहिए। मैं इस टाइम पे वो स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो रट्टे वाली चीज है। आपको किसी एक यूनिट्स के अंदर आपको पता होना चाहिए कि कब किस पे डीप टेंडन रिफ्लेक्स जाता है, किस पे रेस्पिरेटरी जाता है, किस पे कार्डिक। ठीक है, ये मैक्सिमम है जो आपसे, बाकी सारी बातें वही हैं, बाकी सारी चीजें वही हैं, वही पोस्ट ऑप केयर की आपको जरूरत होगी, वही आप इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का कह सकते हैं। आपने सीबीसी और एलएफटीज और आरएफटीज का जिक्र कर देना फोकस लफ्ज के साथ कि इस पेशेंट के अंदर, जो प्री एक्लेम्प्टिक पेशेंट है, उसके अंदर चांसेस होते हैं कि इसके अंदर कोआगुलोपैथी होती है, इसके अंदर लिवर डिसफंक्शन हो सकता है, इवन इसके अंदर हेल्प सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, हेल्प सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, हेमोलिसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट। ठीक है, और उसके अंदर जो क्या उसको कहते हैं, मतलब लाइक कि वो एक सॉर्ट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। क्लिम्शिया अगर हो गया है तो उसके अंदर न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाएगा, सीवी हो सकता है, उसको हेमरेज हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आपने इस तरीके से बतानी है। तो आई होप यू आर क्लियर, एम आई राइट? समझ आ गई ये बात? यस सर। और एक और आपसे सवाल पूछते हैं ऑब्स्टेट्रिक एनेस्थीसिया के अंदर लेबर एनाल्जेसिया के बारे में। ठीक है, कौन बताएगा? हमाद, आप बोलने लगे थे कुछ, या जे? प्लीज हैंड रेज। जे, आपको आवाज आ रही है? अस्सलामुअलैकुम सर। जी, आप मुझे बताएं कि एक पेशेंट को जो है वो लेबर एनाल्जेसिया देना है, तो आपको क्या क्या कंसिडरेशन है और कैसे आप उसका कंडक्ट करते हैं? लेबर एनाल्जेसिया का क्या आपके टारगेट्स होते हैं? फर्स्ट स्टेज में कहाँ तक लेवल चाहिए होता है, सेकंड स्टेज में क्या लेवल चाहिए होता है, क्या आपको रूल आउट करना होता है पहले, और पेशेंट को क्या आप काउंसल करते हैं, क्या इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? पेशेंट की सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे सर। हिस्ट्री में पेशेंट में की असेस करेंगे कोई डिजीज वगैरह तो नहीं है। और इसमें लेबर के लिए सर फर्स्ट स्टेज में P10 से L1 तक होता है सर, और सेकंड स्टेज में S1 और 2 पे होता है सर। और सर इसमें लेबर एनाल्जेसिया के लिए फार्माकोलॉजिकल हैं और नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स हैं जो वो यूज होते हैं सर। नॉन फार्माकोलॉजिकल में सर ये लीमन्स टेक्निक होती है, और इसके अलावा साइकोलॉजिकल पेशेंट को मतलब थोड़ा देखिए, इनकरेज आई एम करते सॉरी, हैं। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। अगर एग्जामिनर आपसे नॉन फार्माकोलॉजिकल नहीं पूछ रहा तो यहाँ तक आप बोल के कि कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल टेक्निक्स होती हैं, वो भी यूज हो सकती हैं, लेकिन एज एनेस्थेटिस्ट हमारा फोकस इस पे होगा। वो आपका देखिए ना, अब आप डिट्रैक हो रहे हैं। आपने हिस्ट्री का नाम लिया है लेकिन आपने कोई ऑब्जेक्टिव कोई बात बोली ही नहीं। हिस्ट्री का नाम लिए बगैर अगर आप इवेल्युएट का नाम लेके आप वो इंपॉर्टेंट बात बता देंगे तो आपकी ज्यादा बेहतर होगा। आपने क्या जुमला बोला है, आपने सुना है? आपने बोला है मैं हिस्ट्री लेंगे कोई उसको बीमारी तो नहीं है। मुझे बताएं इससे क्या समझ आ रहा है? फिर से बोले। हिस्ट्री हिस्ट्री सर प्रीवियस मतलब इसकी प्रेगनेंसी की जो है प्रीवियस आप वाली हिस्ट्री ले लेंगे सर। उसका क्या ताल्लुक है? और सर उसमें असेस करेंगे देखें पेशेंट। जय, अभी मैं इतनी देर से जो कहानी आपको सुना रहा था वो क्या सा कहानी सुना रहा था कि आपने टू द पॉइंट रहना है यार। इसके अंदर एपिड्यूरल लगाने के लिए, इन एडिशन टू द नॉर्मल रूटीन एनेस्थेटिक मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री, आपका फोकस किस पे होगा, वो जुमला आपने बोलना है। वो आपसे देखें हर क्वेश्चन के अंदर वो हर चीज नहीं पूछना चाह रहे होते। मेरी बात समझ आई है? ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री का हमसे किस हद तक ताल्लुक है, आप मुझे ये बता दो। सर मतलब उससे ये असेस करेंगे कि वो उसको प्रीवियस प्रेगनेंसी में कोई PIH वगैरह या एक्लेम्पसिया ऐसी कोई हिस्ट्री में अगर
कॉम्प्लिकेशन को अगर आपने प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री का नाम ले ही रहे ना तो आप पूछेंगे पहले इसको एपिड्यूरल लगा था यार आप अपनी मस्जिद में क्यों नहीं रहते? आप अपनी इस फील्ड में रहे ना, आप अपनी फील्ड में रहे। वो आप सही कह रहे हैं, आप गलत नहीं बोल रहे, लेकिन जब ये टेबल, यही प्रॉब्लम आपको, मेरी बात आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक तो जब बोलने लगता है बंदा तो उसको पता लगता है कि मैं कितना गलतियां कर रहा हूँ, ठीक है? और यही वक्त है, प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी इंप्रूवमेंट आएगी। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो तरतीब या मैं आपको फोकस बात बता रहा हूँ, हो सकता है कि MCPS के अंदर या इवन FCPS के अंदर भी आप बेतरतीब भी बताना शुरू करें तो आप पास फिर भी हो जाए। लेकिन मैं आपको इसलिए इस बात पे ज्यादा सख्ती से टोक रहा हूँ, बता रहा हूँ, पॉइंट आउट कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि जब आप बेतरतीब चलेंगे तो अच्छा, अगर थोड़ा सा टेढ़ा एग्जामिनर होगा ना, वो आपको हिंट नहीं देगा और आप टाइम गुजार देंगे, फोकस बात आप बताएंगे नहीं, काम की बात आप बताएंगे नहीं, और नतीजा ये होगा कि आपको वो नंबर दिए बगैर आपको वो कहेगा थैंक यू वेरी मच, ठीक है? तो इसलिए मेरा मकसद है कि मैं आपको फोकस्ड बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको मैं इंपॉर्टेंट, जब भी एपिड्यूरल देखें, प्रैक्टिकली भी यही होता है ना, जब भी एपिड्यूरल लगाते हैं तो हम ये देखते हैं ना कि भाई कोई ब्लीडिंग की हिस्ट्री तो नहीं है, पहले उसको एपिड्यूरल लगा था या नहीं लगा था, या हम उससे ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री पूछनी शुरू कर देते हैं। अभी आपने पूछी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री उसके पहले? जी जी तो सर। आप नहीं पूछी ना, हमारा उससे ताल्लुक नहीं है। आप उससे ज्यादा से ज्यादा अपने से रिलेटेड बातें पूछेंगे कि कोई उसको, अगर आपने ये बोलना भी है तो आप देखें, आपने सिर्फ जुमला बोल दिया ना ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, तो आपके दिमाग में है कि वो PIH आप पूछना चाह रहे हैं, एग्जामिनर को तो नहीं पता चला ना। एग्जामिनर को तो आप मासूम बच्चा समझे, उसको कुछ नहीं पता समझ रहे, वो आपके मुंह से सुनना चाह रहा है। तो जब आप ये जुमला बोलेंगे ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, तो यू आर नॉट टेलिंग एनीथिंग सिग्निफिकेंट। बजाय इसके ये कि आप ये बोलें कि जब भी आप एपिड्यूरल लगा रहे हैं तो इसमें फोकस आपका ये है कि इन एडिशन टू द रूटीन हिस्ट्री आप प्रीवियस एपिड्यूरल की हिस्ट्री पूछ सकते हैं, और उसको कोई और रिस्क फैक्टर उसको तो नहीं है, या कोई उसकी ब्लीडिंग से रिलेटेड हिस्ट्री तो नहीं, और आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं उसकी लैब से, तो उसका कोagulation प्रोफाइल देख लें और उसका प्लेटलेट काउंट देख लें, दैट्स इट। इतनी सी जुमले में ये बात आपकी खत्म हो गई, वो एग्जामिनर आगे चला जाएगा, उसने इसी पे थोड़ी आपको रिसर्च करनी है, ठीक है? समझ सर आती इसमें है? एक क्वेश्चन सर। जी सर ये एंटोनॉक्स वगैरह, मतलब ये भी हमारी डोमेन ही है ना कि हम बिल्कुल, उसको आप एंटोनॉक्स देते एंटोनॉक्स हैं? बताएं। आप एंटोनॉक्स बताते तो मैं आपको नहीं टोकता, क्योंकि आप फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल टेक्निक्स, उनका नाम भी बताना शुरू हो गए तो मैं तड़प गया हूँ, क्योंकि ये आपकी डोमेन नहीं है, और क्योंकि आप किताब को सफ़े को छापा सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए आप ये बोल रहे हैं, क्योंकि किताब के अंदर नॉन फार्माकोलॉजिकल लिखा हुआ है, तो आपने कहा कि मैंने तो बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, मैंने तो वही बताना है। हालांकि नॉन फार्माकोलॉजिकल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप एक जुमले से ही बात खत्म कर सकते हैं, इसमें तो टेंस भी होता है, उसके अंदर वो ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन आप सिर्फ ये जुमला बोल दें कि इसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल टेक्निक्स होती हैं और फार्माकोलॉजिकल टेक्निक्स होती हैं। जो एनेस्थेटिस्ट का ज्यादा फोकस जो होता है वो जो है वो, या वो एंटोनॉक्स, जाहिर बात है एंटोनॉक्स तो ओवर द काउंटर यूज हो रही होती है ना, उसके अंदर आमतौर पे तो एनेस्थेटिस्ट वहां पे मौजूद होना जरूरी नहीं होता एंटोनॉक्स के लिए, ठीक है? एंटोनॉक्स तो लेबर वार्ड में होती है एंड दे आर डूइंग गिविंग इट, तो ठीक है, वो आप बता सकते हैं कि आप एक एंटोनॉक्स आपके पास ऑप्शन है, लेकिन अल्टीमेटली तो वो आपसे लेबर एपिड्यूरल पूछेंगे, या वो आपसे पोटेंशियल नर्व ब्लॉक पूछेंगे, या वो आपसे सिंगल शॉट स्पाइनल पूछेंगे, सिटिंग डोज आपके एपिड्यूरल के पूछेंगे, यही वो 4 चीजें आपसे सुनना चाह रहे हैं। तो आप उस तक पहुंचे कि पहुंच, अगर आप मैं आपको इसलिए सख्ती से डांट रहा हूं इस बात पे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप वहां पे ये गलती करें। आप अपनी मस्जिद पे रहें भाई, आप दूसरे की मस्जिद में क्यों जा रहे हैं? आप क्यों वहां जाएंगे तो फिर डांट पड़ेगी आपको। आप ऑब्स्टेट्रिशियन हैं, आप क्यों ऑब्स्टेट्रिशियन बनना चाहते हैं? आप एनेस्थेटिस्ट हैं, आप अपने अपने काम से काम रखें, बताएं बाकी चीजें भी, लेकिन अपनी चीजें बता के, ठीक है? मेरी बात समझ आ गई सब लोगों को? प्लीज जी सर। चले, शाबाश। एपिड्यूरल की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं आपने? अच्छा, एक और सवाल, आपने बोला था कि जब उसका सेकंड स्टेज ऑफ लेबर होती है तो S1 होता है, तो पेटेंडल नर्व की क्या रूट वैल्यू होती है? पोटेंशियल नर्व सर याद नहीं। S2 S3 S4, ये ना याद रखने वाली बात नहीं है। अगर मैं आपको इस बात पे लताड़ रहा हूँ कि आपको जो चीज नहीं याद होनी चाहिए वो आपको याद है, और जो चीज आपको याद होनी चाहिए वो आपको याद नहीं है। पोटेंशियल नर्व S2 S3 S4, ठीक है? और आपने ये बोलना है कि जब फर्स्ट स्टेज होती है तो उसमें
सोमैटिक नर्व की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, विजुअल इन्वॉल्वमेंट होती है, और जब स्टेज 2 में पहुंचता है तो सोमैटिक इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट की चीज है। ये आप बताएंगे ना तो अगला आपसे सवाल नहीं पूछेगा। और दूसरे आपने बाकी इन एडिशन टू ऑल अदर थिंग्स विच यू नो, कि आपने उसकी कंसेंट ली है, आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि उसको कुछ इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर फॉल कर सकता है, फेलियर हो सकता है, पार्शियल इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, और लेट हो सकती हैं कि कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, एपिड्यूरल एब्सेस या एपिड्यूरल हेमाटोमा, आपने उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। दूसरी चीज आपने ये उस टाइम पे बतानी है कि अगर उस पहले आपने इन्फ्यूजन चलाई है, और यूजुअली इन्फ्यूजन जो है वो 0.1% देते हैं, 0.1% विद 2 mics पर ml ऑफ फेंटेनिल यूजुअली, ठीक है, यूजुअली ये रेट होता है। और उसमें सॉरी ये डोज होती है, ये कॉन्सेंट्रेशन होती है, और डोज होती है बिटवीन 5 ml to 20 ml पर आवर, ठीक है। ये दो बातें हो गई। और उसके बाद आपने जो लेवल चाहिए होता है वो आपका T10 to L1 तक। तो अगला वो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर अगर उन्होंने पूछना होगा, वैसे ज्यादा चांसेस स्टेबल वाइवे में नहीं है, टोक्स में ये पूछ सकते हैं कि आप लेवल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपने अगर मिसाल के तौर पे L2 L3 के लेवल पे एपिड्यूरल लगाया है, तो आप कितनी डोज देंगे उसको, या कितनी डोज देनी चाहिए आपको, कितने ml पर आवर देनी होगी? सर ये पर सेगमेंट के हिसाब से देंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर 1 to 2 ml पर सेगमेंट के हिसाब से। नहीं वो तो ठीक है, कैसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? मैंने आपको सिनेरियो बता दिए ना, आपने L2 L3 लेवल पे आपने लगाया है एपिड्यूरल, और अब आपने उसके आप कह रहे हैं सेगमेंट कैलकुलेट करने हैं, तो कैसे कैलकुलेट करना? Anyone else? सर इसके नादिर आपकी कुछ आवाज नहीं आ रही यार, मैंने आपको कहा है कोई मसला है आपके स्पीकर का, ये क्या चक्कर है? सर अब आ रही है आवाज? हाँ जी। सर इसको काउंट करेंगे ना कि हमने जो एपिड्यूरल L2-3 पे लगाया तो लेवल हमें चाहिए T10 तक का, तो ऊपर हम काउंट करेंगे कितने सेगमेंट बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल 8 बन रहे हैं या नहीं ऊपर कितने 9 हैं आप मुझे एग्जैक्टली बताओ ना, सिर्फ ऊपर काउंट करने होते हैं या नीचे भी काउंट करने होते हैं? सर मैं बता देता हूँ आपको। 8 सर 8 बनेंगे ना अगर L2-3 पे लगाया हमने। कैसे 8 बनेंगे? सॉरी सर 8 नहीं बनेंगे, L2 से L3 1 और T2 सर 4 बनेंगे ये। एक मिनट तैयबा आप बताओ, आपको आता है ये? सर मुझे नीचे का तो नहीं पता, ऊपर के मैंने नीचे कितने होते हैं, ऊपर तो मैंने निकाली 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर तैयबा को, ये नादिर को तो नहीं पता तो इसको माफी है, आपको नहीं पता तो आपको तो माफी नहीं है, आपको तो नहीं माफ करूंगा मैं। सर माफी तो हमें भी नहीं होनी चाहिए, एग्जाम पास करना है। T10 से नहीं S2 तक करना है, सॉरी T10 से S2 तक काउंट करेंगे। फर्स्ट देखिए, नहीं ये कॉन्सेप्ट ये नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ये नहीं है। कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिस लेवल पे भी आप एपिड्यूरल लगाते हैं उससे 2-3 सेगमेंट ऊपर 2-3 सेगमेंट नीचे। फॉर एग्जांपल इट इज बेटर, जैसे देखिए ना यहाँ पर तो इतना मार्जिन ही नहीं है, ये अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि आप एक लेप्रोटमी करवा रहे हैं आप और उसके अंदर आपको एनाल्जेसिया चाहिए, तो आप कितने ml देंगे? आपने कहाँ तक यहीं पे आपने लगाया है, फॉर एग्जाम्पल आपने लगा दिया L2 L3 के लेवल पे, तो आपको कितने सेगमेंट देने होंगे, कितनी डोज आपको देनी पड़ेगी? जी खामोशी हो गई है। 2 ml पर सेगमेंट से एक हिसाब से 10 ml कर दें, अगर देखें 2 नहीं सेगमेंट्स ये तो नीचे आप ब्लाइंड बता रही हो ना। एग्जैक्ट आंसर इसका क्या होता है? इसका एग्जैक्ट आंसर ये है कि यूजुअली जो ड्रग देते हैं वो 2-3 सेगमेंट नीचे भी ट्रेवल करती है या कर सकती है, तो आपने 2-3 सेगमेंट नीचे भी, इसलिए अगर आप लेप्रोटमी में क्यों लगा रहे होते हैं थोरेसिक एपिड्यूरल, तो आप लगा तो यहाँ पे भी सकते हैं, डोज आप ज्यादा दे दें, तो जितनी डोज आप ज्यादा देंगे वो अनरिक्वायर्ड होगी। अगर आपने एपिड्यूरल जो सॉरी उसकी इंसिजन है, उसकी सुप्रा एम्ब्लाइकल इंसिजन है, तो उसकी T4 से लेके T10 असल लेवल है जो आपको चाहिए, ठीक है, तो उससे आप 3 सेगमेंट नीचे भी काउंट कर लेंगे, ठीक है।
मतलब बेसिकली ये जब आप लगा रहे हैं तो आपने जब ये एपिड्यूरल, अब वापस हम अगर लेबर एपिड्यूरल की बात करें तो ऊपर से आपने T10 तक काउंट किया, T10, T11, T12, L1, L2, L3, ठीक है। और अब आपने L4, L5, S1 भी काउंट करना है, 3 सेगमेंट। और जब नीचे वाले सेगमेंट पे चली जाएगी, जब आपको सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में वो जो सोमैटिक की भी इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गई है, तो अब ऊपर से लेके नीचे तक का दबाव आपको ज्यादा डोज चाहिए होगी, ठीक है। और आपको ज्यादा डेंस ब्लॉक चाहिए होगा निचले लेवल पे। तो आप इसलिए कॉन्सेप्ट होता है ना तैयबा, आपको हमीद लतीफ में कॉल आती है सिटिंग एपिड्यूरल डोज देने के लिए, तो जी सर। वो सिटिंग डोज क्यों देते सर हैं? 1% सर नहीं वो जी परसेंट को वो छोड़ दो, 1% नहीं होती, 0.1% होती है। सर हम तो लिग्नोकेन देते थे ना 1% नहीं NMN। वो ठीक है, हम इस वक्त सिर्फ फोकस्ड ब्यूपिकेन के रेफरेंस से हम बात कर रहे हैं, वो आप दे सकते हैं, लाइडोकेन भी दे सकते हैं आप बिल्कुल, लेकिन ओके मतलब वो भी आप कम डायल्यूटेड दे रहे होते हैं ना, वो आप 2% तो नहीं दे रहे होते, क्योंकि लाइडोकेन से एक्चुअली टॉक्सिसिटी का इतना खतरा नहीं होता, तो इसलिए लाइडोकेन में इतना मसला नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर आप 2% देंगे लाइडोकेन तो क्या प्रॉब्लम होगी? जी, अगर आप उसको 2% दे देंगे 1% के बजाय तो क्या प्रॉब्लम होगी? मोटर स्ट्रेंथ कम हो सकती है। वेरी गुड, पर वो तो इतनी ठीक नहीं है, करती। मोटर ब्लॉक हो जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश है, बल्कि 1% भी शायद ज्यादा है, आप 0.5% दें अगर लाइडोकेन के रेफरेंस से, वो शायद ज्यादा बेहतर होगा। ये कोई डॉक्यूमेंटेड बात नहीं मैं आपको बता रहा, मैं आपको वैसे प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, क्योंकि हम ब्यूपिकेन यूजुअली जो होता है वो 0.1% देते हैं, ठीक है। तो आप उसकी सिटिंग डोज में आप उसकी थोड़ी सी ज्यादा दे सकते हैं अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ उसके निचले सेगमेंट्स आपके ब्लॉक हो रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको सिटिंग डोज इस वजह से देते हैं ताकि वो ज्यादा बेहतर तौर पे इफेक्ट करे निचले सेगमेंट्स पे, ट्रैवल ऊपर की तरफ ज्यादा ना करे, ठीक है। ये उसका कॉन्सेप्ट होता है। जीशान समझ आ गई ये बात? जी सर। ठीक है सर तो फिर लेबर एनाल्जेसिया के लिए अगर नहीं हमसे डोज पूछी जाती है तो हम T10, T11, T12, L1, L2 और L3 6 सेगमेंट्स को हम काउंट करेंगे 6 कि सेगमेंट इतने आप के, जरूर काउंट करेंगे, ठीक है। और नीचे क्योंकि खुद ही ट्रिकल डाउन हो जाएगी, नीचे वालों ट्रिकल को हम डाउन, काउंट नहीं करेंगे नहीं अपनी। नीचे वालों को काउंट आप करेंगे ना। अगर फर्स्ट स्टेज में आपको, इसीलिए तो शब्द स्टार्ट करते हैं एपिड्यूरल, तो यूजुअली 10 ml तक भी काम चल रहा होता है, वो ग्रेजुअली क्यों रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है? बिल्कुल सही है, वो सेगमेंट ज्यादा हो इसीलिए, गए। आ गई समझ बात, वो इसीलिए होती है कि अब वो ग्रेजुअली नीचे की तरफ जा रही होती है पेन, तो जब वो नीचे की तरफ जा रही होती है तो आपको सैक्रल सेगमेंट को भी ब्लॉक करना होता है, तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली यू नीड टू इंक्रीज द डोज। इसीलिए तो 5 to 20 ml पर आवर की जो डोज की वो रेट है, वो ऐसे किसी ने नहीं बता दिया, इसके पीछे टेक्निकल रीजन है, बिल्कुल सही है। ठीक है। और वो आप लेप्रोटमी का सर बता रहे थे, अब लेप्रोटमी जो है तो उसमें तो इसलिए हमारा काफी ऊपर T4 तक का लेवल तो चाहिए होता है। इसीलिए तो आपको बेहतर है ना कि आप उसको लगाएं ऊपर के लेवल पे, इसीलिए तो आप उसको, अगर हाँ, आपको उसमें T4 तक का ब्लॉक चाहिए तो आप बेहतर है कि आप T6 तक लगाएं, T8, T7 तक T6 लगाएं, T6 T7 तक लगाएं, ताकि आपको कम डोज देनी पड़े, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट होता है ना अपर थोरेसिक में, जो थोरेकोटमीज होती हैं उसके अंदर, वो ये थोड़ी है कि वो नीचे लगा के 50 ml पर आवर दे देंगे, बिल्कुल ऐसे ही। वो लगाएंगे उस लेवल पे कि जहां पर उससे करीब का एरिया कवर हो, क्योंकि आप देख नहीं रहे, आपको पता नहीं है, तो इसलिए यूजुअली आपको थोड़ा सा ज्यादा डोज देनी पड़ेगी ताकि वो स्प्रेड करे, ठीक है। इसलिए वैसे मैं आपको बता रहा हूँ फॉर योर इंटरेस्ट कि इवन आर्म एपिड्यूरल लगा के भी आप उसके अंदर कुछ होती है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, डाई होती है, अगर आपके पास वो है ना इमेज, तो आप उसको एपिड्यूरल की डोज देके आप उसका इमेज से देख सकते हैं कि वो डोज ट्रेवल हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। ये खास तौर पे ऐसे प्रोसीजर्स में जिसमें लॉन्ग टर्म एपिड्यूरल की जरूरत होती है ना, जैसे वहाँ पे, यहाँ पे सऊदी अरब में, पाकिस्तान में भी 1-2 सेंटर्स में होता है, उसको कहते हैं हाईपेक सर्जरी, ठीक है, हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी। वो एक बहुत एडवांस प्रोसीजर होता है, वेरी वेरी पेनफुल, जिसके अंदर लेप्रोटमी की तरह ही कैंसर निकाल के उस एरिया में पहले उसको लोकलाइज करके वहां पर इंट्रा ऑपरेटिव रेडिएशन थेरेपी देते हैं, उसको IORT कहते हैं, इंट्रा ऑपरेटिव रेडिएशन थेरेपी, और फिर उसी एरिया में अंडर हाई टेम्परेचर 60 मिनट्स तक दवाई जो है ना वो 40-41 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे कीमोथेरेपी सर्कुलेट करती है, ठीक है, और उसको कहते हैं हाईपेक सर्जरी, हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल। तो ये बेसिक, ये मतलब एग्जांपल से मैं आपको दे रहा हूँ,
इस पेशेंट में तकरीबन 2 वीक्स के लिए आपको एपिड्यूरल रखना पड़ता है। अब आपको अगर एपिड्यूरल 2 वीक्स के लिए रखना पड़े तो आपको क्या करने की जरूरत होती है? जी जीशान। नो आइडिया। टनलिंग, ठीक है, आपको एपिड्यूरल को टनल करना पड़ता है। तो जो टनलिंग होती है वो टनलिंग से एपिड्यूरल बेसिकली स्किन के अंदर चला जाता है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। डायरेक्ट अगर वो एक्सपोज होता है स्किन पे तो वहां से इन्फेक्शन ट्रिकल डाउन होने के ज्यादा होते हैं, तो वो अंडर द स्किन उसको करके उसको टनल कर दिया जाता है, ताकि वो उतने सेंटीमीटर, जितने सेंटीमीटर आपने टनल किया हुआ है वो उतना ज्यादा इन्फेक्शन को ट्रेवल करना पड़ेगा फ्रॉम स्किन टू रीच द एपिड्यूरल स्पेस, ठीक है। गॉट इट। So that's the reason. तो पीड्स को टच कर लें। okay, I think we have covered most of the aspects of obstetric anesthesia. Like I told you that if it is peripartum cardiomyopathy, so you will do the same things. You will again the PIH we have discussed. What else? Obstetric hemorrhage. Obstetric hemorrhage. In obstetric hemorrhage, we will be discussing that. We will be doing the same protocol for blood conservative strategies. And this one, blood warmer, fluid warmers, and use of cell saver, okay, with the provision of filter, okay. So actually I was just focusing at that moment on some people who are going for exam. You know, actually we will be starting our normal discussion. Just a second. We will be starting our normal discussion. I will send you the link later on. I just have to stop it at the this moment, okay? And we will discuss further on again, okay? Sir, at 10 p.m. I will send the link, okay? I will send the link. Okay. Okay, sir. Okay. Bye bye. Thank you, sir. Love.